जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। After a long time, I'm going to start your central nervous system last chapter, but not the least chapter. This is very important. Cerebral blood flow, cerebrospinal fluid, and brain metabolism. Today we are going to start with your cerebrospinal fluid. ठीक है, आज हम आपसे स्टार्ट करेंगे cerebrospinal fluid. And cerebrospinal fluid is a clear, colorless fluid which is about 150 ml, which is present within your brain and spinal cord, and also the subarachnoid space and also into the venous sinuses. So before we start with cerebrospinal fluid system, I would ask to you to learn what should you learn. आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए अपने लेक्चर के आखिर में. These are what is CSF. CSF क्या है, cerebrospinal fluid क्या है, formation, composition of CSF कि इसकी क्या क्या contents हैं. Actually this is an ultrafiltrate of your blood which is actually moving within your brain. So this is what is the composition of cerebrospinal fluid, how it is going to be formed, where it is going to be reabsorbed, and what is the pressure of the cerebrospinal fluid which it is going to exert within the brain and spinal cord. What are the functions of cerebrospinal fluid? What is the perivascular space and the relation of perivascular space with that of cerebrospinal fluid? And what is the cerebrospinal fluid pressure, how it is going to be measured, and how it is going to be regulated by arachnoidal villi. Then the role of high CSF pressure in certain pathological conditions of the brain or either spinal cord. So I'm going to start with cerebrospinal fluid definition. ये होता क्या है cerebrospinal fluid? Cerebrospinal fluid is a clear, colorless fluid found in the brain and spinal cord. कहाँ कहाँ present है? Brain में and spinal cord में present है. And this is your कलरलेस फ्लूइड है. और इसके अलावा दिस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपेंडाइनल सेल्स in the choroidal plexus which are present mainly in the ventricles of the brain. कौन से पार्ट में ब्रेन के प्रेजेंट है? अब ये नहीं कि ब्रेन में बाहर ऐसे पड़ा हुआ है cerebrospinal fluid. It is enclosed within internal brain and outer brain. इंटरनल ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है? विद इन द वेंट्रिकल्स. अब कितनी वेंट्रिकल्स हैं? 2 लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल है और नीचे आपकी फोर्थ वेंट्रिकल पड़ी हुई है. ये आपने स्ट्रक्चर न्यूरोएनेटमी में पढ़ा हुआ होगा, जरूर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना. तो अगर नहीं पढ़ा तो अब आप आज अपना खोलें, इसकी पिक्चर खोलें, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी पिक्चर, लेकिन आपने अपना स्नेल्स एनाटमी में से इसकी स्पेसिफिक पिक्चर भी देखनी है, लेकिन मैं आपको भी दिखाऊंगी. फिर उसके बाद ये कि वेंट्रिकल्स ऑफ द कोराइड प्लेक्सस जो कि डिफरेंट लोकेशंस में हैं, लेटरल वेंट्रिकल में कहाँ है ये भी मैं आपको बताऊंगी. एंड एब्सॉर्ब्ड इन द, और फाइनली ये नहीं है कि वो वहीं रहता है वेंट्रिकल्स में, उसके बाद ये मूव करके जाके आपके आउटर ब्रेन में सिस्टर्ना मैग्ना में जाता है और एब्सॉर्ब्ड हो जाता है इनटू द एरेक्नाइडल ग्रेन्युलेशंस इनटू द venous sinuses और फिर वहां से general circulation में आ जाता है. So what is CSF? CSF can be defined as a clear, colorless body fluid which is found in the brain and spinal cord, and it is produced by specialized epidermal cells in the choroidal plexus of the ventricles of the brain and absorbed in the arachnoid granulation. एक्चुअली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है, जो इंटायर आपका ब्रेन है और आपका स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज एक्चुअली हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1600 से लेके 1700 मिलीलीटर तक इसकी कैपेसिटी, इतना ये है. लेकिन इस कैपेसिटी में से 150 ml ऑफ दिस कैपेसिटी इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड जो रिमेनिंग है वो आपकी ऑक्यूपाइड होती है बाय द ब्रेन एंड द कॉर्ड. अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कितना डेली बनता है? 500 मिलीलीटर ईच डे ये आपका जो है ये बनता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. The fluid which is present actually ventricles of the brain
एंड ऑल्सो इनर ब्रेन में मैंने आपको कहा प्रेजेंट है, और उसके बाद आपको मैंने कहा कि आउटर ब्रेन में। अब आउटर ब्रेन जो है वो तो सिस्टर्ना अराउंड द ब्रेन प्रेजेंट है, और जो उसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स में, सब एरेक्नोइड स्पेस। अब जो सिस्टर्ना मैग्ना है वो किससे के साथ कंटिन्यूस है, सिस्टर्ना मैग्ना सब एरेक्नोइड स्पेस अराउंड द ब्रेन, जो कि नीचे पीछे आपके कंटिन्यू है विद द स्पाइनल कॉर्ड। ऑल दीज चैम्बर्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर। ये नहीं है कि एक कोई रास्ता जो ब्लॉक है, कहीं भी ब्लॉकेज आएगी तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर जो है रेज्ड हो जाएगा। सो ये ऑल ऑफ दीज सब एरेक्नोइड स्पेस, योर वेंट्रिकल्स और इंटरकनेक्टेड with one another, and this pressure is going to be maintained surprisingly at a constant level. फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जिसका स्पेसिफिक प्रेशर है, और ये आपके इनर ब्रेन में, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है, और सिस्टर्ना अराउंड द ब्रेन, और जो कि सब एरेक्नोइड स्पेस में है, जो कि फाइनली आपका एरेक्नोइडल वेलाई वीनस साइनसेस में ओपन होते हैं, वहां जाके ओपन होता है, और उसके बाद ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों लेवल्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये तमाम के तमाम वेंट्रिकल्स भी और आपकी जो सब एरेक्नोइड स्पेसेस हैं, all of them are actually interconnected with one another। ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब ये है कि कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, अबाउट 150 ml ऑफ वॉल्यूम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रेजेंट है, और ज्यादातर इसका जो है 125 ml जो है वो सब एरेक्नोइड में है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है 25 ml विद इन द वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। अब ये कैसे बन कैसे रहा है, ये बनता है डेली एट अ रेट ऑफ 500। कितना इसका डेली इसका फ्लो कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है उसके बाद फाइनली इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फॉर्म होता है एट अ रेट ऑफ अबाउट 500 milliliter per day, which is about 3 to 5 times as much as the total volume of the fluid in the entire cerebrospinal fluid system. 2/3 or more of this fluid is choroid plexus जो फोर्थ वेंट्रिकल में और लेटरल वेंट्रिकल में, इनमें जो हो रहा है उसमें 3/4 वहां से आ रहा है। बाकी जो एडिशनल स्मॉल अमाउंट्स हैं वो एपेंडाइलमल सर्विसेज ऑफ ऑल द वेंट्रिकल्स, बाकी 2/3 आपका आ रहा है लेटरल वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल से। माइन्यूट अमाउंट जो स्मॉल अमाउंट्स आपके थर्ड वेंट्रिकल से आ रही है, और उसके अलावा आपके एरेक्नोइडल मेम्ब्रेन से जो आ रहा है थोड़ा सा वो भी आ रहा है। फिर ब्रेन जो है, ब्रेन से भी आपका थोड़ा बहुत पेरीवास्कुलर जो स्पेस है, सब एरेक्नोइड स्पेस है, या पेरीवास्कुलर स्पेस, जो कि वेस्कुलर, वेस्कुलर से नाम ऐसे शोन हो रहा है। मौजम आप उठ के बैठे, अगर बैठे तो ज्यादा अच्छी बात है, यू आर लाइंग, मोजमा प्लीज। Okay, then this perivascular space that surrounds the blood vessels passing through the brain. Perivascular space क्या होता है, पेरी होता है अराउंड, वेस्कुलर क्या है, वेसल्स के अराउंड जो स्पेस है उसको आप कहते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट comes from the brain through the perivascular space that surround the blood vessels passing through the brain. This I am going to show you the picture कि कहाँ कहाँ present है। ये देखें, this is the lateral ventricle, ये इसका व्यू है, this is lateral ventricle, 2 lateral ventricles हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद आपकी आती है थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल नीचे जाके देखें पीछे तो ये कंटिन्यूस है विद योर ऑफ दिस फोर्थ वेंट्रिकल। सो दिस फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड है विद दैट ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और जो आपकी लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और थर्ड वेंट्रिकल है दैट इज कनेक्टेड विद दैट ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो। Then this your fourth ventricle is continuous with that of your spinal cord and subarachnoid space with that of foramen of Merchanti. This is your, नीचे चला जाएंगे, ब्रेन स्टेम है, ये सेरिबेलम है, और दिस इज योर कंटिन्यूस विद दैट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये आपकी सबएरेक्नोइड स्पेस है जहाँ के आपके एरेक्नोइडल विलाई प्रेजेंट है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। एंड दिस इज योर वीनस साइनसेस, ये जहां जहां मेरा एरो जा रहा है वो देख लें। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, दीज आर द टू लेटरल, ये इसका फ्लो का रास्ता भी है कि कैसे ये आपका जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो फ्लो करता है या आपका फ्लो करके सब एरेक्नोइड स्पेस में बनता है। ये पीछे जो पिक्चर थी वो मैंने दिखाई थी, मेन चैनल्स ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द कोराइड प्लेक्सस एंड देन थ्रू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिस्टम। कहाँ से होता है, फ्लूइड इज गोइंग टू बी secreted, एक्चुअली दिस इज एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रीनल फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है, उसमें भी बनता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्ट्रेशन होकर चीज़ें आती हैं वो फिर आपकी बाहर पास आउट होती हैं। सिमिलरली
यहाँ बाहर तो कुछ नहीं निकलना, ये अंदर ही रहना, इंक्लोज्ड सिस्टम में। तो जो आपका ब्लड की जनरल सर्कुलेशन है वहां से जो अल्ट्राफिल्ट्रेट आया है वो अब आपका ब्लड में से निकल के आपके ब्लड वेंट्रिकल्स में आपके जा चुके हैं। दैट इज गोइंग टू बी सेक्रेटेड बाय द लेटरल वेंट्रिकल्स। सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल से अगर आप पीछे डायग्राम देखें, दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल। यहाँ से ये देखिए ये थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है थ्रू फोरामेन ऑफ Monro, ठीक है। First secreted into the third ventricle and then after additional minute amounts of the fluid from the third ventricle, aqueduct of the sylvius जो कि present है in between the brain stem या behind the brain stem। आप ऐसे समझे कि ब्रेन स्टेम के अंदर से निकल रही है आपकी एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस और ये जाती है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल वेयर स्टिल अनदर फ्यू अमाउंट्स ऑफ द फ्लूइड इज एडेड। क्या रूट हो गया आप इसका? फर्स्ट इज टू लेटरल वेंट्रिकल्स, ऐसे समझे दो लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। नीचे आपकी ये प्रेजेंट है फोरामेन ऑफ मोनरो और नीचे आपका ये समझे ये जो है ये आपका है थर्ड वेंट्रिकल। इसमें थर्ड वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ मोनरो से एंटर हुआ and then this is going to be enter and this is going to pass then again into the your third ventricle। then third ventricle से आपकी aqueduct of the sylvius से ये जाएगा आपका fourth ventricle जहाँ के still another few amounts of the fluid is going to be added। then finally the fluid passes out of the fourth ventricle through three small openings। तो ये जो आपकी अब फोर्थ वेंट्रिकल थी जो नीचे पड़ी थी एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस से थे, वहां से दो लेटरल फोरामेन है जो कि फोरामेन ऑफ लश्का है एंड अ मिड लाइन फोरामेन ऑफ मजेंडी। मजेंडी आपको पीछे मैंने दिखाया था डायग्राम में, जहां से कि फिर वो एंटरिंग द सिस्टर्ना मैग्ना। अब सिस्टर्ना मैग्ना क्या है? एक स्पेस है जो कि बिहाइंड द मेडुला एंड सेरिबेलम। मैंने आपको कहा था ना कि एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस जो है वो ब्रेन स्टेम के साथ अंदर से गुजर रहा है। दो उसके लेटरल आपके लेटरल सिस्टर्ना मैग्ना क्या है कि अराउंड आपके मेडुला और जो सेरिबेलम है उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है। अगर इफ यू सी द डायग्राम तो ये आपका सेरिबेलम है, यहाँ इधर पीछे आपका ये ब्रेन स्टेम पड़ी है। ये जो आपकी गुजर रही है चीज ये आपकी एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस है, यानी कि दरमियान में से गुजर रही है। तो दरमियान में से जो मिड लाइन गुजरता है वो फोरामेन ऑफ मजेंडी और जो दो लेटरल है दीज आर द फोरामेन ऑफ लश्का। और this is space is called as cisterna magna which is a fluid filled space। cisterna magna is then continuous with उसके बाद वो cisterna magna से आप इर्द गिर्द देखें वो सब एरेक्नोइड स्पेस है। एरेक्नोइड जो लेयर है एक्चुअली पाया मैटर एरेक्नोइड मैटर और उन दोनों के नीचे एरेक्नोइड के नीचे सब एरेक्नोइड नीचे जो लेयर है दैट इज सब एरेक्नोइड स्पेस दैट सराउंड द एंटायर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तमाम ब्रेन को भी ऑक्यूपाई करेगी। यूं आपका ब्रेन है सेरिब्रम है इसको भी ऑक्यूपाई कर रही है आपकी सब एरेक्नोइड स्पेस और पीछे जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कंटिन्यूस है सब एरेक्नोइड स्पेस, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट ऑल द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देन फ्लो अपवर्ड फ्रॉम द सिस्टर्ना मैग्ना। आप नीचे आपके ब्रेन स्टेम से नीचे से ऊपर भी जा रहा है, सब एरेक्नोइड स्पेस में भी जा रहा है और आपके सेरिब्रम में भी जा रहा है। अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर कि दिस इज गोइंग टू बी द सिस्टर्ना मैग्ना। ये सिस्टर्ना मैग्ना और ये कंटिन्यूस है, नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड चला जाता है इधर अगर आप नीचे देखें और इधर आपका ये सारे का सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज सब एरेक्नोइड स्पेस एंड दिस इज एक्चुअली where all the CSF is going to be flowed and then finally reabsorbed through arachnoidal villi which is arachnoidal granulation और जो ग्रेनुलेशन से आपका रीअब्सॉर्ब होकर वीनस साइनसेस में चला जाता है। साइनसेस क्या है? वीनस, जिस तरह कि आपका तमाम बॉडी का जो ब्लड है फाइनली आपके वीनस सिस्टम में जाने के बाद अगेन आपके हार्ट में आता है, इसी तरह इसका भी तमाम CSF जो है अगेन आपके जाएगा वीनस साइनसेस में और वीनस साइनसेस से आपकी बॉडी में जाएगा। ठीक है। सो थर्ड वेंट्रिकल आफ्टर एडिशन ऑफ द माइन्यूट अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द, ये सारा आपका हो गया रूट हो गया। ठीक है। सिस्टर्ना मैग्ना से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सब एरेक्नोइड स्पेस and almost all the cerebrospinal fluid then flows upward from the cisterna magna through the subarachnoid spaces which is surrounding the cerebrum जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। From here the fluid flows into and through multiple
arachnoidal villi that projects into the large venous sinuses, which is sagittal venous sinuses, and other venous sinuses of the cerebrum. Thus, any extra fluid which is going to be empties into the venous blood passes through pores of these villi. कोई भी अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड रह गया CSF में तो वो एरेक्नोइडल विलाई में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद ये है कि आपकी सिक्रीशन होनी है कोराइड प्लेक्सस से, वो कैसे होती है कि कैसे आपका ये जो CSF है एक्चुअली बन कैसे रहा है। अब ये जो कोराइड प्लेक्सस की हम बार बार बात कर रहे हैं, एक्चुअली दीज आर कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स की एक गोभी के फूल की तरह या कॉलीफ्लावर लाइक प्रेजेंटेशन है जो कि आपकी कवर्ड होती है थिन लेयर ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ये प्लेक्सस जो हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं इनटू द टेम्पोरल हॉर्न्स ऑफ ईच लैटरल वेंट्रिकल। अभी आपको मैं डायग्राम भी दिखाती हूँ। टेम्पोरल हॉर्न्स ऑफ द टू लैटरल वेंट्रिकल, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। सी दिस डायग्राम, these are the cauliflower type of this blood vessels which are going to be present। कौन सी जगह पर present है? This temporal horn of the lateral ventricle, this is posterior part of your third ventricle and this roof of the fourth ventricle आपकी जो है ये सारी की सारी present हैं आपकी। This lateral horn of the temporal horn of the lateral ventricle, posterior portion of the third ventricle and the roof of the fourth ventricle. All of these are roof of the fourth ventricle and the posterior portion of the third ventricle. ये आपकी सारी की सारी present है। These are actually the cauliflower type of this your choroid plexus। ठीक हो क्या? अब ये बनता कैसे? एक्चुअली बनता ये ऐसे है कि सिक्रीशन होती है फ्लूइड की इनटू द वेंट्रिकल्स बाय द कोराइड प्लेक्सस, मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको याद हो तो तमाम का तमाम जो फ्लूइड बनता है एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है या आपका कोई और पैसिव ट्रांसपोर्ट चल रही होती है या डिफ्यूजन चल रही होती है। यहाँ क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम आयंस through the epithelial cells lining the outside of the plexus। ठीक है, ये भी मैं आपको डायग्राम अगेन दिखा दूँ। सोडियम आयंस जब पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये अपने साथ खींच लेते हैं, वाटर को तो खींचते हैं, प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द क्लोराइड आयंस। दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के यहाँ जो है क्लोराइड आयंस ज़्यादा होते हैं, सोडियम आयंस उतने ही होते हैं जितने प्लाज्मा में हैं। क्लोराइड आयंस ज़्यादा होते हैं, वाटर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और 4 टाइम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होती है, जस्ट 4 टाइम्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा पोटेशियम कम होता है, मैग्नीशियम कम होता है, ग्लूकोज कम है, अमाइनो एसिड कम है। ये सारी मैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कॉम्पोजिशन भी साथ साथ बता रही हूँ कि सेक्रीशन तो हो रही है, लेकिन सेक्रीशन होती कहाँ से? सेक्रीशन आपकी होती है मेनली फ्रॉम योर ये कोराइड प्लेक्सस। और वो कहाँ से होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ। अगर ये आपको MCQ आ सकते हैं कि कैसे सेक्रेशन होती है। सेक्रेशन आपकी होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन से आयंस की? सोडियम आयंस की। जब सोडियम आयन मूव करता है तो ये अपने साथ नेगेटिवली चार्ज मेजर अमाउंट्स होता है क्लोराइड आयंस भी ले लेता है। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ कोराइड प्लेक्सस एंड द टू आयंस इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव sodium chloride in the CSF, which then causes almost immediate osmosis of water through the membrane, thus providing the fluid of the secretion। तो साथ ही साथ अपने और क्या चीज लेके जाता है? वाटर की भी। और सोडियम जहां भी अंदर जाएगा अपने साथ हमेशा वाटर लेके जाता है, ये बात आप याद रखें मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए जब सोडियम अंदर गया तो वाटर भी साथ ही अंदर चला गया। दिस इज एक्चुअली द पिक्चर विच इज विलिस टाइप ऑफ द कोराइड प्लेक्सस। हम विलाई की बात करें तो ये विलाई फॉर्म में प्रेजेंट है और ये इसकी एक्चुअली वीडियो है, मैं आपको वीडियो एंड में दिखाऊंगी लास्ट ऑफ दीज लेक्चर्स। तो ये जो है ये कोराइड आपके प्लेक्सस हैं और ये आपके सेल्स हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो कि लाइन कर रही हैं कैपिलरीज। यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेट जाना है और यहाँ जाना है। कैसे जाना है? ये आपकी ब्लड वेसल लाइन कर रही है, क्यूबॉइडल सेल्स हैं और ये आपकी वेंट्रिकल्स हैं। यहाँ ये कोराइड प्लेक्सस लोकेटेड है। ठीक, तो ये लेस इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा होता है जिसमें ग्लूकोज भी जा रहा है, आपका पोटेशियम भी जा रहा है, बाइकार्बोनेट्स भी जा रहा है इनटू द कैपिलरीज। ठीक, ये दिस इज एक्चुअली द प्रोसीजर। ये ब्लड फ्लो कर रहे हैं ब्लड वेसल्स में और यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम गया, सोडियम के साथ साथ आपको क्या कहा है? क्लोराइड गया।
फिर क्लोराइड के साथ साथ आपको क्या क्या ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल वाटर गया, कुछ अमाउंट में आपका मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, बाइकार्बोनेट्स, ठीक, और ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी है। ये तमाम इसकी कंपोजिशन। ये आपको फ्लो पहले भी मैंने बता दिया था। लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल से थ्रू फोरामेन ऑफ मोटर टू द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से थ्रू एक्विडक्ट ऑफ द सर्विस इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से आपका फ्लो जाएगा सिस्टर्ना मैग्ना में, सब एरेक्नोइड स्पेस में, और इसके बाद ये घूम फिर के नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रहा है, और एरेक्नोइड फाइनली ये एरेक्नोइडल विलाय एरेक्नोइडल ग्रेनुलेशन के थ्रू आपका सैजिटल वीनस साइनसेस में चला जाता है। This is again the picture, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। This is actually the finally your arachnoidal granulation through which your fluid is going to be reabsorbed into the sagittal venous sinuses. ठीक हो गया? So this is actually the physical characteristics and composition of your cerebral spinal fluid. You can come across this question. आपको ये आ सकता है question. Write down how the CSF is going to be formed, where it is going to be flow, where it is going to be reabsorbed, what is the composition of your cerebrospinal fluid. So this is appearance is clear and colorless. Volume is about 150 ml, 125 ml is present within your subarachnoid space, 25% ml is present within your ventricles, and what is the rate of production? 500 milliliter per day, या 0.5 ml per minute this is present. Pressure can be measured through lumbar puncture, and in the recombinant position of lateral recombinant position, and this pressure is about 10 millimeter of water, ये 60 से लेके 150 millimeter of water आपका ये present है. And what is the composition? Proteins are present in lesser amount as compared to your plasma, that is 15 to 45 ml per 100 ml. Glucose is present about lesser amount 50 to 85 milligram per 100 ml. ये composition में इसको आप less या more करके याद कर लें या इसकी values याद कर लें, it's up to you. फिर आपका क्लोराइड कितना प्रेजेंट है? क्लोराइड आपका प्रेजेंट है 720 मोर अमाउंट. मैंने आपको कहा था कि सोडियम उतनी अमाउंट में प्रेजेंट है जितनी अमाउंट में आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका क्लोराइड आइंस हैं वो इधर ज़्यादा प्रेजेंट हैं एज कम्पेयर टू 4 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट इज 720 से लेके 750. इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत सेल्स जो हैं लिम्फोसाइट्स वगैरह 20 to 3 लिम्फोसाइट्स पर क्यूबिक. अब क्या क्या कंपोजिशन है? Osmotic pressure approximately equal to that of plasma. Then sodium concentration, ये जो चीज इक्वल है वो आपने याद कर लेनी, ये आपकी गाइडर में ऐसे लिखा हुआ है. पिछले वाली जो पिक्चर थी इसकी आप पिक्चर ले सकते हो, ये आपकी गाइडर में नहीं लिखा हुआ, सो यू कैन टेक अ पिक्चर. और इसके बाद आपकी आ जाती है कि सोडियम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ प्लाज्मा, क्लोराइड कंसंट्रेशन अबाउट 15% ग्रेटर दैन दैट इन द प्लाज्मा, पोटेशियम अप्रॉक्सीमेटली 40% लेस, ग्लूकोज अबाउट 30%, पोटेशियम आपका लेस है और ग्लूकोज अब आपका लेस है 30%. पोटेशियम कितना है? 40% लेस है, ग्लूकोज कितना है? 30% लेस है. ठीक है. उसके बाद अब आ जाता है आपका फाइनल. हमने अब बात कर ली है फॉर्मेशन की. एरेक्नोइड की जो बात है वो हमने सिर्फ एक पॉइंट में की थी, यहाँ भी अब बता देते हैं कि एरेक्नोइडल विलाई जो हैं फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं थ्रू जो फाइनल कवरिंग है इसकी आपके ब्रेन की, एरेक्नोइडल मेम्ब्रेन की, और वहाँ से वो जो हैं वीनस साइनसेस में जा रहे हैं. और दीज आर द villi which are going to form the macroscopic structures which are called macroscopic, यानी कि थोड़े बड़े स्ट्रक्चर है arachnoidal granulation that can be seen protruding into the sinuses. ये देखें, ये जो है आपकी arachnoidal granulation है, इस पिक्चर में ये चीज़ आपकी नजर आ रही है. ठीक है. उसके बाद फाइनली ये जो है एंडोथीलियल सेल्स, वो मैंने आपको पीछे दिखाया था कि विलाई हैं, विलाई के ऊपर आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं. तो ये जो है ये अब आपके क्या क्या काम कर रहे हैं? एक तो ये कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ आपका CSF को फ्लो को आउट कर रहे हैं. कोई भी आपकी डिजॉल्व्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वैसे तो वो कहते हैं ना कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लेसर इन नंबर है इसकी कंपोजिशन ऑफ योर CSF, तो यहाँ जो है डिजॉल्व्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी यहाँ नजर आ सकते हैं. Even particles are larger as red and white blood cells can be seen into the venous. कोई भी आपके worn out cells हो जाएं, WBCs हो जाएं, या आपके जो हैं रेड ब्लड सेल्स हो जाएं, तो वो भी आपके वीनस ब्लड में दिखाई
जाता है। सो दिस इज फाइनल आपकी एब्सॉर्प्शन जो है एरेक्नोइडल ग्रेनुलेशन से जो हो रही है CSF की। तो सो अब तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द CSF, where it is going to flow, where it is going to be formed, where it is going to be then secreted, where the location of ventricles, what is the route of flow of this your CSF, what is the composition of the CSF, what is the pressure of the CSF, and then finally what is the absorption or reabsorption of this your CSF finally into the वेजिटल आपके जो सेजिटल साइनसेस हैं वहाँ जो फाइनल इसकी होती है थ्रू एरेक्नोइडल विलाई और एरेक्नोइडल ग्रेनुलेशन के साथ। ठीक हो गया। अब इसके बाद कुछ जो आपका CSF है, फाइनली जब भी कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, कोई भी फ्लूइड होता है या कहीं भी कोई फ्लूइड होता है, वो आपका ड्रेन्ड हो जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा आपके वोन आउट सेल्स हैं या एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो कहाँ जाता है, वो एक्चुअली एक स्पेस में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीवेस्कुलर स्पेस। कि आपकी जो लार्जर आर्टरीज हैं ब्रेन की या आपकी वेन्स हैं, तो वो आपकी सरफेस ऑफ द ब्रेन पर लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके एंड्स जो हैं वो अंदर चले जाते हैं पाया मैटर में से गुजरते हुए, और गुजरते गुजरते वो नीचे आपके जहाँ तक वेन्यूज जाते हैं, आर्टरीज और वेन्स, वहाँ तक जाते हैं। सो layer of pia matter, the membrane that covers the brain, the pia is only loosely adherent to the vessel, to the space, so the perivascular space between it, यानी कि दोनों जो वेसल अंदर जा रही है उनके दोनों तरफ में जो स्पेस है, that is perivascular space. Perivascular space follows both the arteries and the veins into the brain as far as the arterioles and the venules go. अब ये काम क्या करती है, इसका फंक्शन क्या आपका यहाँ बताने का मकसद क्या है कि फाइनली जो आपका पेरीवेस्कुलर स्पेस में कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड चला गया, कोई भी एक्स्ट्रा सेल्स चले गए हैं, these can be removed by the lymphatic functions of the perivascular space, या कोई प्रोटीन्स चली गई हैं। So a small amount of the proteins, ये आप स्लाइड देख लें, small amount of the proteins leaks out of the brain capillaries into the interstitial spaces of the brain, and the protein that leaks into the brain interstitial spaces leaves the tissue flowing with the fluid through the perivascular space into the subarachnoid space. On reaching the subarachnoid space, the proteins then flows with the cerebrospinal roots to the absorb the arachnoidal villi into the large cerebral veins. Root वही है कि अब कुछ जो है, एक तो आपका जो है कि एरेक्नोइडल विलाई जो फाइनल आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो एरेक्नोइडल विलाई में होती है, लेकिन कुछ जो थोड़ी बहुत प्रोटीन्स इन पेरीवेस्कुलर स्पेसेस में भी जाती हैं, वो भी क्योंकि ट्रू लिम्फेटिक्स आपके ब्रेन में नहीं प्रेजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रू लिम्फेटिक्स आर नॉट प्रेजेंट। सो व्हाट इज going to be performed, this lymphatic function is going to be performed by the perivascular space, which is the space which is present around these large arteries and veins of the brain. और ये आपके जहाँ तक वेन्यूज जाते हैं वहाँ तक स्पेस जाती है, फाइनली वो सब एरेक्नोइड स्पेस में चली जाती है, जो भी चीजें आपके आती हैं उसमें। ठीक है। सो उसके बाद ये है कि पेरीवेस्कुलर स्पेस देयरफॉर प्रोवाइड्स अ स्लाइस्ड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है ब्रेन का, वो क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, दिस इज पेरीवेस्कुलर स्पेस। द पेरीवेस्कुलर स्पेस कैन ट्रांसपोर्ट एनी एक्स्ट्रा पार्टिकुलेट मैटर आउट ऑफ द ब्रेन whenever there is infection occur in the brain, dead white blood cells or other infections, debris, they are carried away through the perivascular space. ठीक हो गया। The brain lacks true lymphatic vessels. This is very important. वाइवा में भी क्वेश्चन किया जा सकता है, एमसीक्यू भी किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ट्रू लिम्फेटिक्स आपके जो हैं वो इसमें एब्सेंट है, और जो आपका ड्रेन होता है वो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ एक्सेस फ्लूइड, प्रोटीन एंड अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स टू द पेरीवेस्कुलर सिस्टम। लेकिन कुछ स्टडीज जो रोडेंट्स में की गई हैं उसमें कुछ मेनिंजियल लिम्फेटिक्स जो हैं देखी गई हैं, लेकिन दिस इज ओनली प्रेजेंट विद द रोडेंट्स, यानी कि एनिमल्स में प्रेजेंट है, नॉट इन ह्यूमन बीइंग्स। So the true lymphatics lacking within the human being. So this is actually again showing the root, choroid plexus, lateral ventricles से आपका आ गया जी ये third ventricle, then into the fourth ventricle, और ये cisterna magna, subarachnoid space, finally arachnoid granulation, और आपका सारे का सारा reabsorb हो जाता है। So
Now come towards your functions of the cerebrospinal fluid. Very important, very important function of, सबसे जो important function है जो कि पहले describe किया हुआ है आपकी टाइटल में और बाद में बाकी functions बताए हुए हैं, that is going to be performed by the cushioning function of the cerebrospinal. कुशनिंग का क्या मतलब है कि कुशन क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, तो आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है वो एक्चुअली ब्रेन ही पड़ा हुआ है. ब्रेन एक बेयोंसी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है. बेयोंसी का मतलब है कि फ्लोटिंग है विद इन द फ्लूइड, और ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. तो ये जो सॉलिड वॉल्ट है इसके अंदर आपका ब्रेन पड़ा हुआ है. तो ये जो ब्रेन और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिस्टम है ये एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ओनली फॉर अबाउट 4% डिफरेंस है. तो सिंपली जो ब्रेन है ना फ्लोट करता है इसमें. इसलिए अगर कभी बहुत जोर से ब्लो भी लग जाए या अगर ये बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है तो आपका जो इंटायर ब्रेन है वो स्कल के साथ मूव करेगा, लेकिन कोई भी जो चीज़ है वो उसमें डैमेज नहीं होगी. ये कॉन्टेंटेड बाय द ब्लो. That is, no thing is going to be, even by the movement of whole cerebrum, and your skull is going to move within this cerebrospinal fluid. And if the blow is not too hard, then this is no portion of the brain to be momentary contorted. Contorted का मतलब होता है कि कोई डैमेज नहीं होता by the blow. So these are, ये कुछ फंक्शंस है जो मैंने लिखे हैं, कुछ फंक्शंस आगे हैं तो इनको आप लिख लें क्योंकि इस तरह गाइडन में नहीं लिखे हुए आपके ये फंक्शंस. तो प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड और इधर you write down the functions. The cushioning effect and protection of the central nervous system from the trauma is the first function. Second function, mechanical buoyancy and support for the brain. Mechanical buoyancy and support for the brain serve as a reservoir and assist in the regulation of the contents of the central nervous system, or you can say this can act as a homeostasis function. Homeostasis क्या होता था? Maintenance of nearly constant internal environment of the human body. यानी आपके ब्रेन की टेम्परेचर रेगुलेट करना, इलेक्ट्रोलाइट लेवल रेगुलेट करना, या इसका CSF का प्रेशर रेगुलेट करना, ये तमाम का तमाम फंक्शन जो है CSF का है. नरिशेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. प्रोटेक्शन हो गई, होम्योस्टेसिस हो गई, मैकेनिकल बुयांसी हो गई, रिजर्वायर हो गया, नरिशमेंट मीन की न्यूट्रिशन, मेटाबोलाइट्स और तमाम इसमें क्योंकि ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नरिशमेंट में हो रही है. देन रिमूव्स मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मेटाबोलाइट्स के कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो है वो पड़ी है ब्रेन में वो रिमूव होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. देन serve as a pathway for venous secretions to reach the pituitary gland. This is an extra function if you want to write to आप लिख रहे हैं तो इतना important है. So one by one हम इसको discuss करेंगे कि this is CSF which going to perform the main function buoyancy और floating. आपका जो brain है और spinal cord है float कर रहा है within the CSF. एक्चुअल जो इसका वेट है ह्यूमन ब्रेन का वो 1400 से 1500 ग्राम्स है, लेकिन जो आपका ब्रेन CSF में सस्पेंडेड है उसका वेट रह जाता है 25 से 50 grams. The brain therefore exists in the neutral buoyancy, which allows the brain to maintain its density without being impaired by its own weight. यानी इतना भारी होने के बावजूद उसका जो CSF में फ्लोट करने की वजह से उसका वेट जो है 50 ग्राम्स तक रह जाता है. और अगर इसकी ब्लड सप्लाई कट कर दें तो ब्रेन जो है, न्यूरॉन्स जो हैं, ये अगर यहाँ इसमें ये है कि CSF ना फ्लो करे तो इसके न्यूरॉन्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बुयांसी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटेक्शन. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड की जा रही है थ्रू CSF. कैसे प्रोटेक्शन होती है कि अगर कोई भी जॉल्ट लगे, मतलब चोट लगे या हिट लगे, तो ये जो आपका फ्लूइड सिस्टम या CSF है ये एक एज अ शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है. मैकेनिकल, एनी मैकेनिकल, कोई भी हिट लगा है, ब्लो लगा है, चोट लगा है. सो फर्स्ट फंक्शन इज बुयांसी, दैट इज फ्लोटिंग. CSF जो है एक फ्लूइड सिस्टम है तो ब्रेन उसमें फ्लोट कर रहा है, तो ब्रेन जो है या स्पाइनल कॉर्ड अपनी डेंसिटी मेंटेन रखता है और उसका वेट मेंटेन रखता है, भारीपन नहीं दिखाता और फ्लोटिंग पोजीशन में रहता है. सेकेंड इज योर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन क्या है कि कोई भी हिट लगा है, जॉट लगा है
तो ये जो CSF है ये एज अ फ्लूइड बफर के तौर पर एक्ट करेगा और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करेगा फ्रॉम सम फॉर्म्स ऑफ द मैकेनिकल इंजरी। और उसके बाद ये है कि थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रिवेंशन फ्रॉम द इस्कीमिया। दिस इज कि अगर CSF का प्रेशर ज्यादा हो गया है या CSF फ्लूइड ज्यादा हो गया तो इस्कीमिया कैन अकर, या ब्लॉकेज हो सकती है, तो इस्कीमिया ऑफ द ब्लड वेसल्स कैन बी अकर। So how this can be going to be protected by this prevention of brain ischemia? By decreasing the amount of CSF in the limited space in the skull. वो कैसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि लंबर पंक्चर करते हैं या क्या करते हैं और कैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज करके ब्लड परफ्यूजन को इंक्रीज किया जा सकता है। सो नंबर वन फंक्शन इज buoyancy, second function is your third function is prevention of the brain ischemia through drainage of the fluid by decreasing the CSF pressure. Then homeostasis. Homeostasis how? Homeostasis that CSF allows for regulation of distribution of the substances between the cells of the brain and neuroendocrine factors, to which the slight changes can cause problem or damage to the nervous system. That is high glycine concentration disturb temperature and blood pressure control, and high CSF causes dizziness and syncope or even loss of eyesight due to the raised intracranial pressure, which can occur in some brain tumors and some idiopathic intracranial hypertension में ये हो सकता है। Then finally there is clearing waste. कोई भी proteins आ गई हैं, कोई भी red blood cells आ गए हैं, metabolic waste products आ गए हैं, they are going to be removed by the brain's perivascular space, not the true lymphatic system, into the CSF, and then CSF is finally going to be removed into the blood stream as CSF is going to be finally reabsorbed. So I'm going to repeat the all functions. So functions of the CSF is number one function is your buoyancy function. Number buoyancy function के ये जो CSF है आपका एक जो है फ्लूइड है, तो जो एक्चुअल आपका वेट है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का 1400 से 1500 ग्राम्स है ब्रेन का स्पेसिफिकली, तो ये जो है डिक्रीज होके 25 से 50 ग्राम्स तक रह जाता है। तो जब भी कोई हिट या जॉल्ट होता है या कोई भी इंजरी होती है तो ये इसको प्रोटेक्ट रखता है आपका CSF, और दिस इज कॉल्ड एज buoyancy या फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ द CSF। फिर प्रोटेक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन टिश्यूज को, कोई भी इंजरी हो गई है, कोई भी जॉल्ट हो गया है, हिट हो गया है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है। Then prevention of the brain ischemia by decreasing the CSF pressure through lumbar puncture. Number 4, homeostasis function, that is homeostasis, maintenance of temperature, maintenance of the metabolic waste products, maintenance of your high CSF pressure. All these are going to be provided by this CSF, your CSF. Then clearing waste, कोई भी waste products आ गए हैं तो वो आपके waste products जो हैं remove किए जा सकते हैं through CSF. अब कैसे है? These are the actually the functions. Cushions and protects the central nervous system from your cushioning effect is the most important function of your this CSF. Okay, this is very important. Mechanical buoyancy and support of the brain is the second important. Then protection, then nourishment, then removal of this waste products, and homeostasis function, final and homeostasis. या फिर pineal gland का melanocortin वगैरह भी जो रिमूव होते हैं भी या प्रोड्यूस्ड होते हैं, पास होते हैं थ्रू दिस pineal gland, वो जो है ब्रेन का वहाँ से CSF के थ्रू आ रहा होता है। Then finally today's this lectures is your what is CSF pressure. अब CSF pressure normal pressure जो है when lying is somebody is lying in a horizontal position, so this is about 130 millimeter of water या 10 millimeter mercury. मर्करी जो है वो 10 मिलीमीटर है और वाटर कितना है 130 से, पीछे आपको बताया था कि 60 से लेके 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर तक आपका जो है स्पेसिफिकली जो प्रेशर है CSF को वो प्रेजेंट करता है। This pressure can be as low as that of 65 millimeter of water से लेके as high as 195 millimeter of water तक जा सकता है in the normal
हेल्दी पर्सन। ये नहीं है कि किसी का अगर 195 मिलीमीटर आ गया तो आपने कहना है नॉर्मल है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो प्रेशर है वो आपका जा सकता है 65 मिलीमीटर ऑफ वाटर से लेके एज हाई एज 195 मिलीमीटर ऑफ वाटर तक जा सकता है, इवन इन द नॉर्मल हेल्दी पर्सन। ठीक हो गया? सो द cerebrospinal system का जो प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेल रेगुलेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका फ्लूइड फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो नॉर्मली रेगुलेटेड रहे। अब इसमें कैसे रेगुलेशन है? रेगुलेशन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड थ्रू एरेक्नोइडल विलाई मोस्टली, कि जो आपका एरेक्नोइडल विलाई हैं वो फंक्शन करते हैं जस्ट लाइक वेल्व है। अगर कहीं भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हुआ ड्यू टू मोर सीएसएफ तो वेल्व जो है उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां से ज्यादा पास कर जाएगा। दिस इज दैट दिस वेल्व एक्शन ऑफ द विलाई allows cerebrospinal fluid to begin to flow into the blood when the CSF pressure is about 1.5, यानी इतना थोड़ा सा भी जरा सा भी 1.5 मिलीमीटर ग्रेटर हो देन द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द venous sinuses, तो ये जो है वेल्व्स ओपन मोर वाइडली, तो थोड़ा सा भी ज्यादा होगा प्रेशर तो ये जो वेल्व्स हैं ये एरेक्नोइडल विलाई या ग्रेनुलेशंस जो हैं ये आपकी बड़ी हो जाएंगी, डायमीटर ज्यादा हो जाएगा ताकि वहां से फ्लूइड मूव करके ज्यादा मूव कर जाए आपके वीनस साइनसेस में, ताकि प्रेशर जो है वो ब्रेन सेल्स को या ब्रेन को या ऑप्टिक नर्व को प्रेस ना कर सके, ज्यादा प्रेशर उसका डैमेज ना कर सके। This is the natural phenomena until and unless some pathology occurs. ठीक है? Normal conditions में CSF pressure almost never rises more than a few millimeter of mercury higher than the pressure in the cerebral venous sinuses. तो उसके इर्द गिर्द cerebral venous sinuses हैं उनसे जरा सा थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं होता आपका pressure of CSF। लेकिन डिजीज स्टेट्स में, डिजीज स्टेट्स क्या हो सकती हैं? कोई ट्यूमर हो गया ब्रेन का, कोई फाइब्रोसिस हो गया है, कोई पर्टिकुलेट मैटर आ गया है, कोई ब्लड सेल्स आ गए हैं जिन्होंने के लीक कर दिया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ब्रेन डिजीजेस में, या कहीं ब्लॉकेज हो गई है विच कैन कॉज द ब्लड प्रेशर until and unless CSF pressure will not rise for more than few millimeter higher than normal. बिल्कुल थोड़ा सा भी इंक्रीज ज्यादा नहीं करता CSF प्रेशर आपका, अगर वो जो है आप नॉर्मली वो जो इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है? नॉर्मली नहीं इंक्रीज करता, लेकिन अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा? कोई ना कोई डिजीज प्रेजेंट होगी विद इन द ब्रेन या ब्लड वेसल्स के अंदर। कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कोई बच्चों में जो है वो बेबीज में हाइड्रोसेफलस हो सकता है। वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजीज। ठीक है? फिर अब कौन कौन सी चीजें जिनमें कि ये पैथोलॉजिकल हाई CSF प्रेशर हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर by decreasing reabsorption of the cerebrospinal fluid back into the blood. As a result, the cerebrospinal fluid pressure can rise high as to the 500 millimeter या 37 millimeter of mercury 4 times above normal. कोई हेमरेज हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, या फिर कोई ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस टू फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द एरेक्नोइडल विलाई हो रहा है। इन बोथ ऑफ दीज हैमरेज और इन्फेक्शन में, बोथ ऑफ दीज का हैमरेज में क्या होगा? रेड ब्लड सेल ज्यादा हो जाएंगे। इन्फेक्शन में क्या होगा कि WBC ज्यादा हो जाएंगे। सडनली अपीयर इन द cerebrospinal fluid and can cause serious blockage of the small absorption channels through the arachnoidal villi, and this also sometimes elevates the cerebrospinal fluid pressure to 400 to 600 millimeter of mercury 4 times about normal. कुछ बेबीज भी होते हैं जब बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, तो दे आर गोइंग टू बी बॉर्न विद हाई cerebrospinal fluid pressure which is often caused either due to highly resistance of the this blood vessels or to fluid reabsorption through the arachnoidal villi, to few arachnoidal villi, या villi जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं विद एबनॉर्मल एब्जॉर्प्टिव, या तो एरेक्नोइडल विलाई नंबर कम है या फिर ये कि उसमें एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज आ गई है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोसेफलस। दिस यू कैन सी कि हाइड्रोसेफलस में कितना बड़ा बेबी का हेड भी हो गया साथ, ये आपका फ्लूइड एक्चुअली इसमें प्रेजेंट बेबी के, जिसकी वजह से कोई ब्लॉकेज है या फिर विलाई कम है जिसकी वजह से कंडीशन है हाइड्रोसेफलस। डिटेल इसकी क्या ट्रीटमेंट है ये हम बाद में करेंगे।
देन कम्स कि आप ये CSF का प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं. CSF pressure can be measured through a specialized technique which is called as a lumbar puncture. अब lumbar puncture क्या है? Lumbar puncture जो है एक specific technique है जो कि आपकी lumbar punctures you can do lumbar puncture through recumbent position, the lateral position लिटा के उसको जो है उसका या बिठा के भी आप कर सकते हैं पूरा अपना उसको आगे पेशेंट को करके मुंह अगले आगे की तरफ करके घुटनों से जोड़ देते हैं और थर्ड और फोर्थ लंबर स्पेस में नीडल पास करते हैं. प्रोसीजर क्या है? फॉर मेजरिंग CSF इज सिंपल. फर्स्ट द पर्सन लाइज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल in his or her side so that the fluid pressure in the spinal fluid is equal to the pressure in the cranial wall. The spinal cord or the cranial wall का equal pressure हो जाए. Then a spinal needle is inserted into the third and fourth below the lower cord and the needle is connected to a vertical glass. उसके साथ एक glass जो tube है वो जोड़ लेते हैं and then it open to the air to its top. The spinal fluid is then allowed to rise to the tube as high as it will. It rises to about a level of 136 millimeter above the level of the needle. Pressure is said to be about 130 millimeter of water or 13.6 जो है millimeter of mercury. That is about 10 millimeter mercury pressure. ठीक हो गया? This is the condition. या आप लिटा के या आप बिठा लें ऐसे घुटनों के साथ जोड़ लें और थर्ड और फोर्थ लंबर स्पेस में ये आपने लंबर नीडल पास की है. थर्ड और फोर्थ वर्टिब्रा के अंदर subarachnoid स्पेस में cerebrospinal fluid is collected from the thecal sac that surrounds the spinal cord and this space is called as subarachnoid space. और आपने नीडल प्रेस की है. इसके आगे आपने ग्लास यहाँ से जो है फ्लूइड फ्लो करेगा और इसके आगे आपने ग्लास ट्यूब लगाई हुई होगी. ठीक है, तो वहाँ से फ्लूइड फ्लो करके इस ग्लास जो टेस्ट ट्यूब्स होती है उसके अंदर एंटर होता है और वो कलेक्ट करके बोथ मेजर्स दिस इज थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक. डायग्नोसिस क्या है कि डायग्नोस करना है कि कोई उसको जो आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आएगा उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कोई आरबीसीज तो नहीं है, कोई हेमरेज तो नहीं है, कोई डब्ल्यूबीसीज तो नहीं है, कोई लिम्फोसाइट्स तो नहीं है, कोई न्यूट्रोफिल्स तो नहीं है, कोई आपकी यूसिनोफिल्स तो नहीं है, किस किस्म की इन्फेक्शन है, कोई प्लेटलेट्स तो नहीं है. मतलब वो आपने देखना है अंडर माइक्रोस्कोप और फिर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है, उसकी कंपोजिशन देखी जाती है. यानी कि CSF इस तरह लेके और फिर उसका प्रेशर मेजर किया जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिग्निफिकेंस क्या है? टू मेजर lumbar puncture test to measure CSF pressure. Number one, this is therapeutic and diagnostic both and उसकी माइक्रोस्कोपिक की जाती है and chemical analysis. या थेराप्यूटिक होता है कि ट्रीटमेंट देनी है तो लंबर पंक्चर के थ्रू यू कैन गिव सम इंजेक्शंस आल्सो. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई इंजेक्शंस भी आपको दिए जा सकते हैं थ्रू दिस CSF और लंबर पंक्चर. अब ये जो है एक और तरीका है. एक तो ये तरीका है कि लंबर पंक्चर टेस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं या आप हाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर देख सकते हैं थ्रू ऑप्टिक टेस्ट. ऑप्टिक टेस्ट क्या है? ये आप आए में पढ़ेंगे कि ऑप्टिक टेस्ट क्या है. वैसे तो मैंने अभी आपको देखा था कि आप सुना था कि मैडम सारा आपको पढ़ा रही थी ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क. तो ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग या डीमा से भी आप देख सकते हैं कि CSF रेज्ड है. दैट कैन बी done through eye examination, that is through fundoscopy. That condition is called as papillary edema. तो ये पैपिल एडीमा है कि नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क थ्रू फंडोस्कोप ऐसी नजर आएगी या ऑप्थेल्मोस्कोप ऐसी नजर आएगी. और 3 तरह के ग्रेड्स हो सकते हैं. आपसे बियॉन्ड स्कोप है, एक आइटम में नहीं दिया हुआ है लेकिन कोई भी एग्जामिनर हो सकता है पूछ ले आपसे कि पैपिल एडीमा क्या है. तो पैपिल एडीमा ग्रेड 1 हो सकता है, पैपिल एडीमा ग्रेड 2 हो सकता है, पैपिल एडीमा ग्रेड 3 हो सकता है, मोर स्वेलिंग हो सकता है और ये डैमेजिंग होती है टू ऑप्टिक नर्व. Okay, today this is the end of your lecture. So far we have studied क्या क्या पढ़ा है. अब आप लोगों ने मुझे बताना है, बताएं कि what is CSF. I want to see कि how much you have studied and कितने लोग जो हैं वो अभी तक सुन रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो सो गए. So please tell me कि what is CSF and then I will show you a video of 5 minutes. 5 मिनट्स की एक वीडियो वो भी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फिर मैं आपसे सुनती हूँ. दैट इज इफ इट इज सीन.
5 मिनट्स की एक वीडियो जिसमें आपको ये जो फ्लो है वो नजर आ रहा है कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी फ्लो योर cerebrospinal fluid प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज योर cerebrospinal fluid। एनाटॉमी क्या है cerebrospinal fluid की? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट विद यू पीपल, ये आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी पीछे से ब्रेन स्टेम है। ये अगर आप इसको देखें तो ऐसे आपका जो है ब्रेन के कहाँ प्रेजेंट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अभी आपको नजर आएगा इस वीडियो में। ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं आपकी, ठीक है, दिस दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स। ये इसका एक्चुअली 3D फंक्शन है, 3D पिक्चर्स है जो कि आपको दिखाई दिया। ये देखिए इसका लेटरल है, ये कौन सी वेंट्रिकल है? लेटरल वेंट्रिकल। ये कौन सी है? थर्ड वेंट्रिकल। और नीचे कौन सी प्रेजेंट है आपकी? फोर्थ वेंट्रिकल। और ये क्या प्रेजेंट है? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। कहाँ प्रेजेंट थी? बिहाइंड द ब्रेन स्टेम, इन बिटवीन योर, किसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों? ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के दरमियान। बड़ा व्यू उसका दिखा दिया उसने। Fourth ventricle, aqueduct within the brain stem. This is your lateral ventricle. This is your third ventricle, fourth ventricle. अच्छा जी, अब इसकी आ जाती है लोकेशन। लोकेशन, ये आपकी लोकेशन आ गई। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। L34 याद रखें, तो पहले लेटरल आता है, फिर आपका थर्ड वेंट्रिकल आता है। ये क्या है जी? कोराइड प्लेक्सस हैं, ये लोकेशन है। Posterior temporal part of the lateral ventricle, roof of the third ventricle, posterior part of the fourth ventricle. ये आपके कोराइड प्लेक्सेस हैं जहां से आपका बनना है फ्लूइड और देन फ्लो करना है। ये क्या है? ये आपको डायग्राम मैंने पहले दिखाई थी, कोराइड प्लेक्सेस ऑफ विलाय। इसके नीचे क्या है? आपके ब्लड वेसल्स हैं। मैंने आपको बताया ना, ये CSF जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेट है। एपिथेलियम किस तरह की है? क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ये ब्लड फ्लो करेगा बीच में से, देखिएगा ये सारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ इसके कंटेंट्स प्रेजेंट है। ये आपके वेंट्रिकल्स हैं जहाँ ये प्रेजेंट है कोराइड प्लेक्सस। ये सारा का सारा फ्लूइड मूव कर रहा है। कैसे फ्लूइड बना था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी हुई थी बच्चों? सोडियम आयंस की। अभी देखिएगा सोडियम आयंस मूव करेंगे टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज सोडियम, और सोडियम के साथ साथ वो किसको साथ लेके गया है? क्लोराइड आयंस को। क्लोराइड के साथ साथ बाइकार्बोनेट। और कौन सा ऑस्मोटिकली ज्यादा से ज्यादा कौन से मॉलिक्यूल्स जाएंगे? यस, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सारे का सारा CSF बन रहा है ना। वाटर चला गया, वाटर के साथ और कौन कौन सी माइन्यूट अमाउंट्स जो हैं वो आपकी प्रेजेंट है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम, सारे के सारे लेसर अमाउंट्स, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं लेकिन वेरी लेसर अमाउंट्स। सोडियम उतना ही है जितना कि ब्लड में। अब ये सारे का सारा, अब ये कहाँ जा रहा है? अब ये फ्लो कर रहा है, कोराइड प्लेक्सस में से फ्लो कर रहा है। ये रूट है इसका, दिस इज द रूट थ्रू द वेंट्रिकल्स। यहाँ से गया थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल से, सराउंडिंग द ब्रेन, सिस्टर्ना मैग्ना, एंड देन फाइनली इनटू द सबएरेक्नोइड स्पेस। कितनी प्यारी ये वीडियो है। और फाइनली रीअब्सॉर्ब होके कहाँ गया? एरेक्नोइडल ग्रेनुलेशन के थ्रू इनटू द सेजिटल वीनस साइनसेस, वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम से अगेन फिर आपका ब्लड में चला गया, और ब्लड से हार्ट में चल जाती है। हर चीज हार्ट की तरफ जाती है, फिर दोबारा मूवमेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनली फ्लो फॉर्मेशन। टोटल वॉल्यूम कितना है? 150, 500 cc milliliter is produced daily. This is your end, and please tell me about anything
एवरी 6 आवर रिप्लेस होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी देर के बाद ये रिप्लेस होता है तो एवरी 6 आवर। सी गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट। नाउ प्लीज टेल मी कि आपने आज क्या सीखा। कुछ समझ आई है आपको? नहीं समझ आई तब भी बता दें प्लीज। If you are listening me, please reply me. Otherwise, I will ask Ghulam Hussain to mark you absent. जितने लोगों का जवाब आएगा जाग रहे हैं। अजफर, अरमान जी, क्या आपको बेटे कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? हशाम, हशाम हमेशा लेक्चर सुन रहा होता है जी। असफर जी, मुजीबुर रहमान गुड। 2 बच्चों के आंसर आए, इनकी तो प्रेजेंट पक्की है, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सक रही जी। ताइबा जी ठीक है बेटे, समझ आइए। यू अंडरस्टैंड द लेक्चर? गुड। एनी प्रॉब्लम हशाम, लारेब, एनी प्रॉब्लम यू हैव? कोमल, थैंक यू सो मच, अच्छा पढ़ाया मैंने, आपको पसंद आया। कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कुछ भी हो, यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग टू यू। और CSF का मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। क्वेश्चन आपको आता होता है कि इसकी डेफिनेशन बताएं, इसकी आप कंपोजिशन बताएं, इसकी फॉर्मेशन बताएं, इसका फ्लो बताएं, इसकी ड्रेनेज बताएं, CSF प्रेशर का मेजरमेंट कैसे होती है ये बताएं, किन कंडीशन में CSF जो है वो आपकी जी बेटे। वीडियोस तो हमेशा ही अच्छी लगती हैं, अगर इसकी वीडियो की आवाज़ भी आ रही होती तो बहुत ही अच्छी होती। अभी आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगी, वो इतनी अच्छी है कि उससे आपका CSF का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइम विद द CSF अगेन। कुछ चीज़ें इसकी CSF की अभी एबनॉर्मलिटीज़ रह गई हैं। और ये आपका लास्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर सिस्टम का लास्ट चैप्टर है। तो अगर टाइम हुआ तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी, और जो आपने बेटे इंशाल्लाह प्रॉफ के लिए प्रिपेयर करने हैं। और इंशाल्लाह मोटर सिस्टम विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल इफ यू विल learn it by correlating it with anatomy. एनेटमी के साथ साथ इसको मोटर सिस्टम को पढ़ोगे और सेंसरी सिस्टम को, तो आप यकीन करो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको ऐसे ही लगेगा कि ये कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है जो कि यूजुअली नजर आता है। चलें जी, ये मोहम्मद हुसैन, गुलाम हुसैन, इफ़ यू आर लिसनिंग मी, तो ये जो बच्चे हैं इनकी आपने ज़रूर प्रेजेंट लगानी है, और बाकियों की फिर मैं आपको बताऊंगी कि लगानी है कि नहीं लगानी, जिन्होंने आंसर किए हैं मुझे। Thank you very much for the lecture. ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। फिर मंडे को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इसी लेक्चर को अगेन वी विल कंटिन्यू विद दैट ऑफ CSF। अल्लाह हाफिज जी। गुलाम हुसैन, आर यू लिसनिंग मी? जी गुलाम हुसैन, ओके, अल्लाह हाफिज।